Hello my dear students. Many of you will be appearing for CLAT 2026 and English is one of the most important, one of the most significant and challenging section of your exam. So while preparing, you people might be confused on how you're supposed to study for that, how you are supposed to prepare for this particular section. Well, do not worry students. I, Ankita Rawat, today I will be guiding you on all the techniques that you will be using when it comes to preparing for your English section of your upcoming examination. So here you can see the very first step is going to be to know what is exactly there in your examination, to know what kind of questions are there. So since it is reading comprehension based, so there will be 4 passages of 450 words each, approximately 4 passages of approximately 450 words each. That means on an average, you are supposed to give 5 to 7 minutes per passage in order to solve that particular passage or particular section. Now, the kind of questions that are asked are based on reading and comprehension, right? The main point discussed in the passage as well as any argument and viewpoint mentioned in the passage. The next is drawing inference. Okay, drawing inference means understanding the kind of, I would say, attitude that people have with the help of different kind of situations mentioned. So conclusion draw करने की जो ability होती है, एक निष्कर्ष तक पहुंचने की जो ability होती है, वो हमारी check करी जाती है इस type के question से. So यानी कि inference based questions भी आते हैं हमारे passage में. Summarizing the passage. अब summarize वो passage summarize करने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन एक तरीके से theme और tone पूछ ली जाती है कई बार हमारे जो एग्जाम होता है उसमें. फिर उसके बाद हमारा आता है कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स. सेम हमारा कहीं ना कहीं इन्फरेंस बेस्ड या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही बोल सकते हैं हम. एंड लास्टली हमारे हो जाते हैं वोकैब बेस्ड, जिसमें कि वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स फ्रॉम द पैसेज हमें जो है निकालने पड़ते हैं. ओके, एंड फ्रेजेस भी कई बार उसमें यूज हो जाते हैं. फिर अब हमारा आता है, अगर हमें पता चल चुका है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, सो अब हमें कैसे करना है. सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज गोइंग टू बी हैविंग अ गुड फाउंडेशन. सो यानी कि अब आप लोगों को किस चीज़ पे काम करना है. सो एक तो आपकी होती है रीडिंग स्पीड. दूसरी चीज जो आपकी होगी वो होगी कॉम्प्रिहेंशन स्किल. और इसके अलावा जो चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम में, वो होगी आपकी वोकैबुलरी. क्योंकि अगर आपको शब्द या द वोकैब जो यूज़ हो रही है उस एग्ज़ाम में, उस पैसेज में, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स ऑफ दोज स्टेटमेंट्स, अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड और इवन आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस. ठीक है, तो हमें क्या है, रीडिंग स्पीड पे काम करना है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे काम करना है और हमारी वोकैबुलरी पे काम करना है. सो दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स, या आई वुड से द 3 थिंग्स और द 3 ब्रिक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हैविंग दैट फाउंडेशन. ओके, सो अब आप जो है उस फाउंडेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट step required in building that foundation is going to be reading. Now reading what? You can go for reading other things as well, such as novels or articles in journal, but having a reading of newspaper is highly beneficial and we suggest that too. Now what kind of newspaper? Obviously since it is English examination, okay, the entire exam is in English language, so you are supposed to read English newspapers. Now which 2 newspapers we would like to suggest you? So the first is going to be The Hindu, and the other important newspaper that you will be reading is going to be the Indian Express. Now, it is not necessary for you all
टू रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स, आइदर ऑफ देम इज़ गोइंग टू वर्क आउट, दोनों में से कोई भी एक होगा आप लोगों के पास, वो चल जाएगा। अब कैसे पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है हमारे उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, है ना। आप लोग पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें हमारी न्यूज़पेपर रीडिंग को प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है। सो एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोग पढ़ना, इन दोनों न्यूज़पेपर में से जो भी आपके पास न्यूज़पेपर होगा उनका एडिटोरियल सेक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडिटोरियल सेक्शन। और उस पर डेली जो है अलग अलग वैरायटी के कॉलम, अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स पे एडिटोरियल्स पे आर्टिकल्स लिख के आते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। एक और चीज़, मेक श्योर आप जो भी रीडिंग कर रहे हैं या जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें एक ही टाइप की जो है या एक ही टॉपिक पे वो चीज़ें बार बार ना पढ़ रहे हो। हैव अ डाइवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, ओके। सो आप लोगों के पास एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए अपने रीडिंग में। बेसिकली आपको एक डाइवर्सिफाइड रीडिंग करनी है, डिफरेंट टॉपिक्स पे, क्योंकि हमारे अगर हम एग्ज़ाम में देखें तो हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स पे जो है पैसेजेस आते हैं। कई बार हमारे लिटरेचर या इंग्लिश पे बेस्ड हमारे पैसेजेस आते हैं, ऑथर्स के द्वारा कुछ एक्सर्प्ट्स लिखे रहते हैं, ऑलरेडी उन्होंने कुछ कंटेंट लिखा रहता है, उनके छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स लिखे हुए आ जाते हैं, ठीक है। साइंस पे आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग पे, सोशल इश्यूज़ पे आ जाता है, तो बहुत अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर एक ही पर्टिकुलर टाइप के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, फाइनेंस पे बेस्ड आ जाता है, तो उससे क्या होता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है वो लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। आप एक ही चीज़ को समझने के लिए रेडी तो हो जाओगे, लेकिन उसके अलावा अगर बाकी चीज़ें आ गई तो वो चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, ओके। सो डाइवर्सिफाइड रीडिंग आप लोगों को करनी है। क्यों करनी है, मैंने उसका रीज़न भी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। बिकॉज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स आर आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन, फाइन। सो रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन न्यूज़पेपर हो सकता है, या तो फिर आप लोगों की नोवेल वगैरह भी अगर आप लोग पढ़ते हैं, इन जर्नल जो है पढ़ना, ठीक है। अब रीडिंग भी कैसे करनी है, टाइम बाउंड करनी है, ठीक है, टाइम बाउंड करनी है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको ये भी देखना है कि हाँ, आप जो है उस पैसेज को जब पढ़ रहे हो तो कितने देर में पढ़ रहे हो, यानी कि हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू रीड दैट पैसेज, and how productive that much reading is, means what kind of things you are being able to grasp from that passage, कितना तुम जो है और क्या तुम है उस पैसेज से ग्रास्प कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है, ठीक है। सो एक तो होगा टाइम बाउंड रीडिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है दैट whether you are able to understand that passage or not, ठीक है। जितने भी टाइम फ्रेम में आपने वो पैसेज पढ़ा है, उस टाइम फ्रेम में आप लोगों ने वो पैसेज या वो आर्टिकल जो है अच्छे से समझ पाया है या नहीं, ठीक है। सो चेक whether you have correctly understood the passage, okay, so that is more important. हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टाइम लगे उस पैसेज को पूरा समझने में, हो सकता है कि एक ही बार में ना आए समझ में, सो गो फॉर द अदर रीड, ओके, गो फॉर द अदर रीड, एक और बार पढ़ो आप उस चीज़ को, ठीक है, एंड डेफिनेटली फिर समझ में आने लगेगा। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप धीरे धीरे ये चीज़ें रेगुलरली करते रहोगे, सो आप में अपने आप आपको वो जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ आप लोगों को, एक और चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं। क्या है वो चीज़ कि वाइल यू आर रीडिंग एनी काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, जब भी आप किसी भी टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर उसके अलावा कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, सो वेन एवर यू आर रीडिंग दिस, एट टाइम्स यू विल एनकाउंटर सम न्यू वर्ड्स, ठीक है, न्यू वर्ड्स। सो आप लोगों को क्या करना है, उन वर्ड्स को जो है नोट करना है, नोट डाउन दोज वर्ड्स, ठीक है, note down those words, and once you note them down, after that mention its synonym, okay,
and antonym. Fine. And इसको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है. जितने वर्ड्स आप लोग नोट डाउन करते रहोगे उन्हें रिवाइज करना है. ठीक है. इसके अलावा डेली जो है न्यूज़पेपर से एटलीस्ट आप लोगों को 10 वर्ड्स नोट करने. ठीक है. इससे क्या होगा, आप लोगों की जो वोकैबुलरी है वो बिल्ड होगी. ठीक है. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू बिल्ड योर वोकैबुलरी. फाइन. नाउ द लास्ट स्टेप. ठीक है. द लास्ट स्टेप, फाइनल वन, इट इज प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. क्योंकि अब क्या होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ी बहुत अपने में इंप्रूवमेंट कर चुकी है बाय फॉलोइंग द ऑलरेडी ऑल द स्टेप्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑलरेडी, है ना, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी. सो आफ्टर दैट द फाइनल थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है. अब फिर इसमें देखो कि हाँ तुम एक्चुअली जो है कितना टाइम. ठीक है. चेक आउट योर टाइम, हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चन. ठीक है. चेक योर टाइम. फाइन. इसके अलावा मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक टेस्ट सॉल्व करना है. ओके. फाइन. और देखना है कि जितनी भी आपकी इम्प्रूवमेंट या जितनी भी आपने प्रैक्टिस करी है वो आप लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज एग्जीक्यूटिंग, और वी वुड से एग्जीक्यूशन ऑफ योर हार्ड वर्क, of your practice. ठीक है. So that is most important thing. These are the steps, these are the things, and this is how you are supposed to prepare for your English exam. Okay. So that was it for today, students. In case you wish to have more such informative videos, do not forget to subscribe to our channel. Do like this video and अपने जो है वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे. This is exactly how you can find our courses. हमारे एप्लीकेशन में भी, इनफैक्ट हमारी वेबसाइट में, दोनों में ही हमारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग जो है हमारी वेबसाइट पे जाएंगे. ठीक है. ADA247 की वेबसाइट पे जाना है, इसे स्क्रॉल करेंगे. सो हम लोग यहाँ पे जो है, ठीक है, इस सेक्शन में जाना है हमने. ओके. इसे स्क्रॉल करेंगे. यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के सेक्शन में जाना है. इसके आगे हमें लॉ एंट्रेंस के एग्जाम जो होते हैं उसमें जाना है. एंड है यू कैन सी द वेराइटी ऑफ कोर्सेज दैट वी हैव. ठीक है. सारे जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उसको कवर करने के लिए काफ़ी हैं. ठीक है. जिसमें स्पेसिफिकली अगर मैं CUET LLB की बात करूं तो फिलहाल में हमारे पास जो है प्रहार प्रो बैच. ठीक है. प्रहार प्रो 2.0 बैच जो है लेटेस्ट में चल रहा है, जिसमें आपको नंबर ऑफ लाइव क्लासेस के साथ साथ डाउट क्लासेस भी मिलेंगी. ठीक है. यहाँ पे बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, बुक्स यानी कि हार्ड कॉपी भी मिलेगी बुक्स की. ठीक है. मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक गाइडेंस मिलेगा आपको. 1-on-1 गाइडेंस मिल जाता है टीचर के साथ. ठीक है. दूसरा हमारा इसी में प्रहार 2.0 बैच भी है. ठीक है. इसके अलावा अगर हम क्लैट में देखें हमारा जो है फिलहाल के लिए, तो क्लैट में हमारे जो है महापैक भी है. ठीक है. 5-year लॉ कोर्स फॉर क्लैट, एलिट, एमएच के लिए. ठीक है. एंड रैंकर्स प्रो 2.0 बैच एंड रैंकर्स 2.0 बैच. सो दीज आर द बैचेस दैट यू पीपल हैव डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. यू आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर दीज बैचेस टू एनहांस योर, I would say, preparation and guarantee your selection. Okay. So all the best, my dear students. You can comment on any of the most important topics that you would like to have some more videos on. So that was it, and we'll meet soon.